हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक हैगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो वो एनर्जी किवें होंदी है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड ड्यू टू इट्स मोशन, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v। सो मास m है, स्पीड v ਨਾਲ मूव कर रहा, तो ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ਹੁਣ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की हो जाएगी? देखो ਆਪਾਂ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? v ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਟ h ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪੋਜੈਸਡ ਬਾਈ ਅ ਫਲੂਇਡ ਆਫ ਮਾਸ m ਐਟ ਹਾਈਟ h, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ mgh ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਟ h ਤੇ ਮਾਸ m ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? mgh। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? mgh ਬਾਈ m। ਸੋ ਇਹ gh ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਹੋ ਗਈ gh ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ v ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਪੋਜੈਸਡ ਬਾਈ ਅ ਫਲੂਇਡ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, dx ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਵੈਸਲ which will be the piston at one side. Let this vessel is filled with a liquid, ठीक है। तो देखो भी जड़ा कंटेनर है या वैसल है, it is filled with a liquid of a density rho, ठीक है। a area of cross section इस piston ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ p ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, experienced by the liquid। ਸੋ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਈ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ P ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਪਿਸਟਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? P ਇਨਟੂ A। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ dx ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ dx ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪਿਸਟਨ, ਦੈਨ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्क। सो फोर्स अपने को पी ए है तो dx ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ dx ਦੂਰੀ ਇਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ p dv, ठीक है। P dv where dv is equal to a dx, ठीक है। सो वॉल्यूम ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ लिक्विड, ठीक है, ਜਿਹੜੇ इंक्रीज्ड है, ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ, क्योंकि प्रेशर करके एनर्जी आई
एनर्जी ते वर्क की सेम चीज़ वैल्यू होंदी है, ठीक है। सो ये जो वर्क लगा दिस इज इक्वल टू द प्रैशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सो प्रैशर एनर्जी कितनी होगी, PdV, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ मास ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होया है, ठीक है ना, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ मास ऑफ द लिक्विड है अपने ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ let m be the mass of the liquid, then ठीक है, let m be the mass of the liquid of volume dv, ठीक है ना। dv वॉल्यूम जी इंक्रीज हुई है उनका लिक्विड का मास आप m कह दईए तो m की वैल्यू कितनी बन जाएगी, रो dv, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो जाएगा, ठीक है। सो ये रो dv मास हो गया। सो इतने आ प्रैशर एनर्जी आ गई, आ मास ऑफ द लिक्विड आ गया जो वॉल्यूम dv का। सो इतने की आ जाएगी प्रैशर एनर्जी पर यूनिट मास की हो जाएगा फिर, मास इज इक्वल टू की हो जाएगा आ प्रैशर एनर्जी हो जाएगी PdV ते मास नाल डिवाइड करांगे मतलब रो dv नाल अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने को आंसर की आ जाएगा इक्वल टू, देखो dv कैंसल हो जाएगा, सो P बाय रो वैल्यू बंदी आ जाएगी, ठीक है। सो प्रैशर एनर्जी पर यूनिट मास की आ जाएगा P बाय रो। सो अपने को P बाय रो प्रैशर एनर्जी पर यूनिट मास आ गया, हाफ V² काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आ गया, तो GH प्रैशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास आ गया, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ करांगे ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਨ ਲਈ, ठीक है ना। ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ठीक है ना। ਸੋ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। सो बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट की है, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ द प्रैशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਲਈ, ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪਰੈਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਰੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਕੰਪਰੈਸੀਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਨ ਵਿਸਕਸ ਹੋਵੇ, ਨੋਨ ਵਿਸਕਸ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋਲੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਵਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ, ਠੀਕ ਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ P ਬਾਈ ਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਹਾਫ V² ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जी GH है। सो तीनों का सम कॉन्स्टेंट होएगा, ये आप प्रूव करना है फॉर यूजिंग एन आइडियल लिक्विड, ठीक है। सो इनू आप ये स्टेटमेंट होगी, इनका आप प्रूव करांगे, ओके। हाँ जी, देखो आप प्रूफ इदा करना है, बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट आप की। हुण इहदे लई देखो एक आप इनकंप्रैसीबल लिक्विड का फ्लो देख लैंदे आ किसी पाइप दे विच, ठीक है, जिद्दां एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन वेरिंग है, घटदा वधदा है। इत्थे पॉइंट ए ते उहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन A1 है, प्रैशर इत्थे P1 है, जमीन तो उहदी हाइट H1 है ते V1 वेलोसिटी नाल जिहड़ा लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। उस तरह एंड B जिहड़ा कोई पॉइंट आपां ले लिया पाइप का, B पॉइंट ते हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जिहड़ी H2 है, इत्थे प्रैशर P2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन A2 है ते इत्थे वेलोसिटी V2 है, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ P1 A1 H1 V1 ਐਂਡ P2 A2 H2 V2 B ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋ
एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पैक्टिवली। ठीक है, ਹੁਣ देखो फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एट पॉइंट ए, इत्थे जिहड़ी फोर्स लगेगी, फोर्स कितने बराबर होंदी, प्रैशर इंटू एरिया। सो इत्थे P1 A1 आपां लिख दांगे। ठीक है, सो ये फोर्स की वैल्यू होगी एट पॉइंट ए। हुण इत्थे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्लूइड इन 1 सेकेंड एट पॉइंट ए। हुण देखो वेलोसिटी उहदी हैगी V1, इत्थे 1 सेकेंड से दूरी कितनी तय करेगा, वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम कितना डिस्टेंस के बराबर। सो इत्थे V1 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड की आपां गल कीती है। सो ये वैल्यू हो जाएगी V1 के बराबर। ठीक है, सो S बराबर V1 हो गया अपने। ठीक है, सो डिस्टेंस आप S लिखा है, तां करके S बराबर V1 हो गया। ठीक है, और इसलिए आप कहांगे वर्क डन पर सेकेंड ऑन द फ्लूइड एट ए। देखो वर्क कितने बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो फोर्स अपने को आ है P1 A1। ठीक है, तो डिस्टेंस अपने को V1 है। सो देयरफॉर वर्क डन पर सेकंड ऑन द फ्लूइड एट ए की हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हो गई P1 A1, तो डिस्टेंस हो गया V1। ओके, सो P1 A1 V1 के बराबर हो गया। सो इत्थे तुसीं भावें पहले P1 A1 S लिख लो, फिर इत्थे तुसीं P1 A1 V1 लिख लो। ओके, इस तरह आ एंड बी ते जिहड़ा वर्क है पर सेकेंड बाय द फ्लूइड, ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो इत्थे प्रैशर P1 सी, इत्थे प्रैशर P2 है, इत्थे एरिया A1 है, इत्थे एरिया A2 है, इत्थे वेलोसिटी V1, इत्थे वेलोसिटी V2 है, तां करके P2 V2 A2 V2 आ जाएगा। ठीक है, सो ये वर्क आ जाएगा एंड बी ते, इस तरह जिवें आपां कैलकुलेशन कीती है। ठीक है, सो हुण देखो इत्थे प्रैशर ज़्यादा है तो इत्थे प्रैशर घट है, क्यों भला, क्योंकि लिक्विड इधरों फ्लो कर रहा है। जिस एंड से प्रैशर ज़्यादा लगेगा उधरों दूजे पासे लिक्विड फ्लो करेगा। ठीक है, सो नैट वर्क डन बाय द फ्लूइड बाय द प्रैशर एनर्जी इज गिवन बाय, हुण देखो इत्थे वर्क जिहड़ा है वो लगा P1 A1 V1। ठीक है, प्रैशर एनर्जी इधर प्रैशर एनर्जी ज़्यादा होगी, इधर घट होगी। सो वर्क डन बाय द प्रैशर एनर्जी की हो जाएगा P2 A2 V2। ठीक है, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, ये नैट वर्क डन बाय द प्रैशर एनर्जी ये आ गया। ठीक है, हाँ जी, आपां इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लास्ट लैक्चर में कीता सीगा, वो समझो तुसीं आपां ये चीज़ पढ़ी सी, डेल्टा M1 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू A1 V1 रो। रो 1 रो 2 लिखिया सीगा, बाद इनकंप्रैसिबल लिक्विड होने करके उनकी डेंसिटी जिहड़ी है सेम आपां बोली सी, तां करके आ चीज़ आ गई सी। हुण देखो इत्थे डेल्टा टी जिहड़ा है, क्योंकि आपां पर सेकंड की गल कर रहे हैं, सो डेल्टा T 1 हो जाएगा। सो अपने को ये की बन जाएगा, डेल्टा M1 ओवर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू A1 V1, तो रो भी बटे चपा लै जी इधर। सो मास पर यूनिट डेंसिटी की होगी A1 V1। सो यही A2 V2 के बराबर है। ठीक है, सो ये आपां इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो की कहांगे कि डेल्टा M ओवर रो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, सो ये चीज़ क्लीयर होगी तुहानूं। हाँ देखो इस इक्वेशन दे विच आपां एम मान लांगे, मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, तो आपां की कहांगे, फिर इत्थे लिखांगे M ओवर रो हो जाएगा इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है ना, इत्थे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, सो आपां इत्थे जिहड़ा A1 V1 ते A2 V2 दी फिर आपां कहांगे, सो नैट वर्क डन बाय द फ्लूइड बाय प्रैशर एनर्जी इज गिवन बाय, सो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, P1 M बाय रो माइनस P2 M बाय रो। ठीक है, सो ए वर्क डन नेट वर्क डन बाय द फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय प्रैशर एनर्जी विच इज W। ठीक है ना, सो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय प्रैशर एनर्जी विच इज इक्वल टू W, ਉਹਦੀ वैल्यू क्या आ जाएगी P1 M बाय रो माइनस P2 M बाय रो। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है,
हाँ देखो आ जी वर्क डन बाय द प्रैशर एनर्जी W इक्वल टू दिस आया है। सो ये प्रैशर एनर्जी द्वारा जो वर्क किया जाएगा उहदे नाल की है लिक्विड फ्लो करेगा। ठीक है, लिक्विड फ्लो करेगा तो उहदे च इस हाइट तो इस हाइट से चला जाएगा। सो उहदे नाल की है उहदी पोटेंशियल एनर्जी तो किनेटिक एनर्जी दोनों च चेंज आएगा। ठीक है, सो आप कहांगे सो दिस वर्क डन बाय द प्रैशर एनर्जी ऑन द फ्लूइड इंक्रीजेस द किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਫਲੂਇਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਐਟ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਐਟ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਐਟ ਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਮਾਸ ਹੈਗਾ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इतने हाइट H2 है mgh2 माइनस mg h1। ठीक है, ये वैल्यू अपने को आ जाएगी। तो देखो इंक्रीज इन द किनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड कितने बराबर होएगा। देखो आ एरिया A1 जेड़ा ना A1 ग्रेटर दैन A2 है, आ एरिया ज़्यादा है आ एरिया घट है। ठीक है, सो तां करके अपनी वेलोसिटी जी है इस पॉइंट से ज़्यादा होएगी देयरफॉर V2 ग्रेटर दैन V1 होएगी क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप पढ़े A1 V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जी एरिया ज़्यादा उत्थे वेलोसिटी घट होंदी है। ठीक है, इधर एरिया ज़्यादा इतने वेलोसिटी घट है इतने एरिया घट है इतने वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, सो इंक्रीज इन द किनेटिक एनर्जी द फ्लूइड की हो जाएगा क्योंकि इतने किनेटिक एनर्जी ज़्यादा इतने घट है। सो आप कहेंगे किनेटिक एनर्जी एट बी माइनस किनेटिक एनर्जी एट ए। ठीक है, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, सो आप लिखांगे किनेटिक एनर्जी एट बी कितनी हो जाएगी। देखो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। ठीक है ना, ए तो इनकी वैल्यू हाफ एम V1 स्क्वायर होएगी। ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम की कहती है कि जो वर्क लगता है ना किसी भी फ्लूइड से वो उनकी इंक्रीज इन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। सो वर्क डन कितने किया वर्क कितने किया प्रैशर एनर्जी ने। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सो देयरफॉर वर्क डन by the pressure energy is equal to increase in the total energy। ठीक है ना, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, इंक्रीज इन द टोटल एनर्जी आप कह देंगे इंक्रीज इन द किनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो वर्क डन बाय द प्रैशर एनर्जी उसकी वैल्यू की वो आप लिखी सी। ठीक है, सो देयरफॉर P1 m by rho माइनस P2 m by rho इज इक्वल टू। और देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी चेंज किया हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। सो चेंज इन किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। ठीक है, सो ये प्लस कर देंगे वो वैल्यू mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, सो किनेटिक एनर्जी चेंज आया प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज आया वो प्रैशर एनर्जी जो अपना वर्क जोड़ा किया वो बराबर है। ठीक है, सो इन इक्वेशन आप ध्यान नाल देखिए तो देखो
एक चीज़ तुसीं ध्यान नाल रखनी है, देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ P1 V1 ਤੇ A1 ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। P1 A1 V1 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਪਰ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਉਦੋਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, mgh2 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, mgh1 ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਫ V2 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ V1 ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਾਈਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ 2 - 1 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 - 1 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ 1 - 2 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, P1 m/ρ minus P2 m/ρ is equal to half mv2 square minus half mv1 square plus mgh2 minus mgh1, ठीक है। ਹੁਣ देखो 1 वाले ਵੱਖਰੇ कर लिए तो 2 वाले ਵੱਖਰੇ करिए आप। सो अपने को क्या आ गया, P1 m/ρ, ठीक है। आ माइनस हाफ mv1 स्क्वायर उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, हाफ mv1 स्क्वायर। आ माइनस mgh1 है, ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा इधरले पासे R2 वाला इधर ले आइए आप, P2 m/ρ प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस mgh2 है, ठीक है। और m ਨਾਲ दोनों पासे ਆਪਾਂ कॉमन करके डिवाइड कर दीए, तो m कॉमन करके डिवाइड करांगे तो अपने को की रह जाएगा, आ देखो तुसी m कॉमन कर दिए अपने को P1/ρ रह गया प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 रह गया प्लस GH1 इक्वल टू इधरों भी आप m कॉमन कर दिए तो अपने को P2/ρ प्लस V2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इधरों m कॉमन चला गया, V2 स्क्वायर बाय 2 रह जाएगा प्लस इतने GH2, ठीक है। m कटिया जाएगा, इधर भी m तो इधर भी m जो कैंसल हो जाएगा, तो अपने को आ रह गया P1/ρ प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GH1 इज इक्वल टू P2/ρ प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GH2। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ਆ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਤੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ਇਹ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ। सो A पॉइंट ते जिन्नी सी उन्नी B पॉइंट ते अगली सारी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। सो देयरफॉर P/ρ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 2 डी लिखांगे, P/ρ इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय 2 प्लस GH इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो यही आप प्रूव करना सीगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप प्रूव करनी सी, देखो P/ρ प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GH इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज आवर रिजल्ट। बाकी आप इरेज कर दें अगला, हाँ जी। हम देखो इनका एक और स्टेटमेंट बनती है बर्नौलीज थ्योरम की, आप इस इक्वेशन को G नाल डिवाइड कर दीए तो P/ρg प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस H
इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय जी हो जाएगा। कांस्टेंट बाय जी भी नवा कांस्टेंट बन जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो ये न्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस एच इज इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट के। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ એનર્ਜੀ ਹੈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ प्लस एनर्जी हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, सो अपने को आ गया प्रैशर हैड, ये वेलोसिटी हैड है। ठीक है, वेलोसिटी हैड तो ये है ग्रेविटेशनल हैड। सो सम ऑफ द प्रैशर हैड प्लस वेलोसिटी हैड प्लस ग्रेविटेशनल हैड फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, प्रैशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड। इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ये अनदर स्टेटमेंट होगी अपनी बर्नौलीज थ्योरम की। ओके।